stable, then it is said to be in equilibrium. ओके, मतलब मैंने आपको बताया था वेइंग बैलेंस को याद रखना, जब वेइंग बैलेंस दोनों तरफ इक्वल होंगे, that stage is called as equilibrium. And when this equilibrium is exist in ions, then it is called as ionic equilibrium. So ions कब किसमें फॉर्म होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स. क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स? Yes, the substance which give rise to a formation of ions in its aqueous solution called as electrolytes. कितने टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं? कौन से दो टाइप्स हैं? Strong electrolytes and weak electrolytes. What is meant by strong electrolytes? Yes, the electrolytes which ionizes or dissociated completely called as strong electrolyte. Example: strong acid, strong base, and the salt of strong acid and strong bases. Okay, so as strong electrolyte dissociated completely, is the reverse reaction is possible in strong electrolyte? Hence equilibrium not exist. किसमें exist नहीं करता? But what is meant by weak electrolyte? The electrolyte which dissociated partially. ऐसा electrolyte जो partially dissociate होता है, मतलब incompletely dissociate होता है, उसे हम क्या कहते हैं? Example: weak acid, weak base, and the salt of weak acid and weak base. So, in case of weak electrolyte, only small amount of electrolyte get dissociated and large amount remain as it is. Hence, equilibrium exists between the ions and electrolyte, and such type of equilibrium is called as ionic equilibrium. उसके बाद हमने पढ़ा था degree of dissociation or degree of ionization. It is represented by which symbol? Alpha. Okay. What is the meaning of alpha? Yes, the moles of the ions formed when electrolyte is dissociated. It is a fraction of the total number of ions formed from the electrolytes. Okay, और formula हमने क्या लिखा था कि number of moles of ions upon total moles of electrolyte. And percentage dissociation का formula क्या था? Alpha into 100. And how we calculate the concentration of cation and anion? Alpha into C. When we multiply degree of dissociation with C, that is concentration, we will get the concentration of cation and anion from electrolytes. ठीक है, यहाँ तक हो चुका था. Let's move towards the next topic. So today we start with the acid and bases. Okay, that is the equilibrium of acid and bases. Now what is meant by acid in your word? आपको क्या लगता है क्या होता है acid? Which give rise to H plus ion. Which give rise to H plus ion. Very good. लेकिन यार बेसिक याद करो, जब आपने सबसे पहले एसिड देखा था तो आपको बोला था कि the substance which are bitter, sour in taste. Yes, the substance which are sour मतलब तुरट are called as acid. या litmus paper test बोला था कि the substance which litmus paper to which one? Red litmus paper to blue या blue litmus paper to red? Blue litmus paper to red called as acid. Okay, the substance which are sour in taste and which convert blue litmus paper to red called as acid. Okay, बराबर है blue litmus to red. Yes. And what second one is the base. Base के लिए क्या बताया था आपको? The substance which are bitter in taste and soapy in touch. ऐसा substance जो कैसा है? कड़वा बिटर, लेकिन हाथ को कैसा लगता है? सोफी, मतलब साबुन जैसे हाथों में लेने के बाद चिकनाहट महसूस होती है, ऐसा अगर चिकनाहट है उस सब्सटेंस में और उसकी टेस्ट बिटर है तो उसको हम क्या कहते थे? बेस. बेस लिटमस पेपर को कौन सा टर्म कर देता है? रेड टू ब्लू. ओके, लेकिन बाद में जैसे जैसे आप एडवांस नाइन्थ में गए तो नाइन्थ में आपने पढ़ा कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें H प्लस आयन होता है उसको कहते हैं एसिड, और ऐसा सब्सटेंस जिसमें OH माइनस होता है उसे कहते हैं बेस. लेकिन जब आप 11th में आए तो आपने देखा कि FeCl3, AlCl3, ओके, इनमें तो ना H प्लस आयन है, लेकिन देन ऑल्सो इट इज एक्ट एज बेस, सॉरी एसिड, एंड NH3 उसके अंदर तो OH माइनस भी नहीं है,
देन उसको हम बेस कंसिडर करते हैं. यस, मतलब बेस की वाइड डेफिनेशन है, एसिड की वाइड डेफिनेशन है. सो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस. ओके, क्या पढ़ने वाला है? डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस. सो राइट द हेडिंग एसिड बेस इक्विलिब्रियम. क्या लिखोगे? एसिड बेस इक्विलिब्रियम. So सबसे पहले what is meant by acid and base? Let's see the various type of definitions of acid and bases. Okay, and now my question is why there is a need to study acid and bases? Why there is a need to study acid and bases? Why there is a need of study acid and bases? क्यों पढ़ना है acid and bases? अरे कुछ एप्लीकेशन है, यू नो केमिस्ट्री इज अबाउट द एप्लीकेशन. तो एसिड एंड बेस पढ़ने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में जो प्रोडक्ट यूज करते हैं मेनली मेड अप ऑफ एसिड एंड बेस. फॉर एग्जांपल साइट्रिक एसिड लेमन में होता है, फिर ऑरेंज में होता है, देन साइट्रस फूड दैट इज कॉल्ड एज आंवला, यस उसमें होता है. बेस, अभी आप बोलोगे बेस कहाँ पे है? सोप, डिटर्जेंट्स, these are the bases. Okay, and that's why it is very important to study about the acid and bases क्योंकि हम इसको widely use करते हैं our daily life. Okay, so there are various theories are proposed to explain an acid and bases. तो first theory थी Arrhenius concept. क्या Arrhenius theory? पहली theory क्या है? Arrhenius theory या Arrhenius concept. According to Arrhenius theory, it is very simple theory. Acid is a substance which contains H plus ion, or acid is a substance which donates H plus ion in its aqueous solution. Okay, acid is a substance which contains H plus ion. Yeah, acid is a substance which donates H plus ion in its aqueous solution. And obviously, example क्या होंगे? HCl. अभी HCl को अगर हमने वाटर में डिसॉल्व किया, मीन्स अगर हमने इसका एक्वियस सॉल्यूशन बनाया तो क्या बनेगा हमें? H प्लस प्लस Cl माइनस. ओके, सिमिलरली हमारा वीक एसिड है एसिटिक एसिड जो विनेगर में होता है. अगर हमने विनेगर को वाटर में डिसॉल्व किया एज इट इज अ वीक, ठीक है, पता है ना, स्ट्रॉन्ग के लिए सिंगल हेडेड एरो और वीक के लिए डबल हेडेड एरो. डोंट फॉरगेट, जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए सिंगल हेडेड एरो और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डबल हेडेड एरो. इसका ध्यान ही नहीं है. क्या बताया कब यूज करना है सिंगल हेडेड एरो, कब यूज करना है डबल हेडेड एरो? यस, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप फास्ट. व्हेन वी हैव टू यूज सिंगल हेडेड एरो एंड व्हेन वी हैव टू यूज डबल हेडेड एरो? स्ट्रॉन्ग में सिंगल हेडेड एरो और वीक में डबल हेडेड एरो. उसने बताया ना साइड वाले ने. हाँ बस, सेट अप बेटा, ध्यान दो, सेट अप. सो वीक के लिए डबल हेडेड एरो एंड स्ट्रॉन्ग के लिए. सो एसिडिक एसिड when dissolved in water, it means when we prepare the aqueous solution of acidic acid, क्या मिलेगा हमें? CH3COO minus, that is acetate ion plus H plus ion. It means such substances are acid. क्यों acid है ये? क्योंकि ये H plus ion donate कर रहे हैं और इनमें H plus ion है इसलिए दो दे रहे. Okay, now what is meant by base? Base is a substance that contain OH group and produce OH minus ion when dissolved in water. Okay, so what is base? Base is a substance which contains OH group and gives OH minus ion in water. For example, NaOH. अच्छा, NaOH strong electrolyte है या weak है? Very good. है ना, NaOH weak है ना? फिर हाथ डाल के दिखाओ उसके solution में. It is a strong electrolyte, so it will be dissociated into Na plus OH minus. And second one is NH4OH. NH4OH कैसा
प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन. सो ऐसा सब्सटेंस जो OH ग्रुप प्रोड्यूस करता है when dissolved in water called as bases, and this concept is called as Arrhenius concept या Arrhenius theory. Okay, so write down Arrhenius theory. Okay, so Arrhenius theory of acid and bases. मेन हेडिंग डाल ली एसिड एंड बेस इक्विलिब्रियम. उसकी पहली सब हेडिंग है Arrhenius theory of acid and bases. Arrhenius theory of acid and bases. It is a very old concept. Okay. Okay, so write down. According to Arrhenius theory, according to Arrhenius theory, according to Arrhenius theory, acid is a substance. According to Arrhenius theory, acid is a substance that contain hydrogen, and gives H plus ion According to Arrhenius theory, acid is a substance that contains hydrogen and gives H plus ion in its aqueous solution. Produce H plus ion in its aqueous solution. Okay, according to Arrhenius theory, acid is a substance that contains hydrogen and gives H plus ion in its aqueous solution. Produce H plus ion in its aqueous solution. Write down the example. Acid के example लिखो. दो example दिया है HCl and acetic acid. तो HCl कौन है? Strong acid. And acetic acid is a weak acid. Clear? It is the first concept for acid and bases. Now write down the second. बेस के लिए लिखो. अच्छा एग्जाम लिखो जब. ओके, सबका एग्जाम्पल लिखिए. Okay, so write down next. According to Arrhenius theory, base is a substance. According to Arrhenius theory, base is a substance that contain what's the group? OH group. According to Arrhenius theory, base is a substance that contain OH group. Okay, minus thing, OH group, and gives OH minus ion in its aqueous solution. According to Arrhenius theory, base is a substance that contains OH group and gives OH minus ion in its aqueous solution. ठीक है, जिसमें OH group होता है और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद क्या देता है? OH minus ion. OH minus मतलब हाइड्रोक्साइड. याद रखना, H plus को कहते हैं प्रोटॉन या हाइड्रोनियम आयन. Okay, and OH minus ion is called as hydroxide. क्या कहते हैं? So write down the examples. कौन सा दो एग्जाम्पल लिया है? फिर से स्ट्रॉन्ग एंड वीक. स्ट्रॉन्ग में NaOH and वीक में NH4OH. NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड and NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, पढ़ना भी आना चाहिए. अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ओके, हो गया?
हैज अ लिमिटेशन. हम बोल सकते हैं इट इज हैविंग अ ड्रॉबैक. कैसे? क्योंकि कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल NH3. ओके, NH3 जिसमें OH माइनस नहीं है, देन आल्सो इट इज एक्ट एज ए बेस. या FeCl3 या AlCl3 जिसमें H प्लस आयन नहीं है, देन आल्सो दिस सब्सटेंस एक्ट एज ए एसिड. सो टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट, ऐसे सब्सटेंस जिसमें OH माइनस भी नहीं है या H प्लस भी नहीं है, उनका एसिडिक एंड बेसिक नेचर प्रूव करने के लिए न्यू एंड एडवांस थ्योरी वाज given by the Lewis, called as Lewis concept of acid and base. Okay, it is a recent one in 1923. Okay, this concept was developed in 1923. Lewis concept of acid and base. क्यों concept की? देखो, जब तक नीड नहीं होती तब तक कोई नया concept आता नहीं है. अभी क्यों इस कंसेप्ट को इम्प्रूव करने के लिए क्यों नीड, मतलब हम बोल सकते हैं कि व्हाई देयर इज अ नीड टू इम्प्रूव दिस कंसेप्ट. बिकॉज कुछ उन्होंने क्या कहा था कि बेस में क्या होना चाहिए? OH ग्रुप. और एसिड में क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन. ओके, लेकिन नाउ टेक दिस एग्जांपल, FeCl3 and AlCl3 हेड में हाइड्रोजन, then also this substance act as a acid. Now look at the example of NH3, है उसमें OH minus ion, then also it act as a base. So new theory was given by Lewis, G.N. Lewis in 1923, called as Lewis concept of acid and base, and it is widely used concept. Okay, सारे मतलब लेविस कंसेप्ट ने जितने भी टाइप के एसिड एंड बेस है सबको एक्सप्लेन किया. According to Lewis, the substance which accept electron pair, ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है? एक्सेप्ट, आर कॉल्ड एज एसिड. क्या लेविस कंसेप्ट? The substance which accept electron pair are called as acid, and the substance which donate electron pair are called as base. जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो बेस है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो एसिड है. Now here अमोनिया, नाइट्रोजन के ऊपर तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, while FeCl3 अगर आपने देखा तो इनको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन है. तो इनका ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, while NH3 डोनेट द इलेक्ट्रॉन. That's why NH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए वो कौन है? बेस. एंड FeCl3 और AlCl3 क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन accept. Hence it is AlCl3 and FeCl3 are acid. Clear everyone? So write down second concept, Lewis theory को for acid and bases. Lewis theory for acid and bases. Lewis theory for acid and bases. Yes, what happened? Any difficulty? So Lewis theory. This theory was given by G.N. Lewis in 1923. Okay, this theory was given by G.N. Lewis in 1923. Next point. According to Lewis theory, एसिड क्या है? अरे एसिड कौन है अकॉर्डिंग टू लेविस? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. और बेस कौन है? बेस कौन है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. बेटा डोनेट कौन करेंगे? ऑब्वियसली जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. तो ऐसे जनरली इसके एग्जाम्पल होते हैं ऐसे आयन्स जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जैसे OH माइनस आयन, Cl माइनस, Cl माइनस. देखो इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है. या कुछ ऐसे एलिमेंट जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जाम्पल NH3 के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. सो ऐसे सब्सटेंस क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं. और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेंगे? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, फॉर एग्जाम्पल Ag+,
student who is talking behind. Okay? If you don't need, don't sit in the class. I'm not going to tolerate this. Okay? This is a last warning. नेक्स्ट टाइम मैं वार्निंग में नहीं दूंगी, सीधा आप लोगों को बाहर निकालूंगी. समझ में आया? सो FeCl3, then BCl3, AlCl3. So these are the substance which having the इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है. अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो हर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है. कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? ऑक्टेट चाहिए, 8 चाहिए. लेकिन ये तीन जो है उनके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है. और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है तो इनको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन. दैट्स व्हाई दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड एक्ट एज ए लेविस एसिड. क्या कहते हैं उनको? ओके. इसके अलावा कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है जिसमें डबल बॉन्डेड विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे CO2 है. ओके, ये SO2 है, वो भी एज अ एसिड बिहेव कर सकते हैं. तो एसिड अकॉर्डिंग टू जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उनको लेविस एसिड कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उनको बेस कहते हैं. ओके, एंड जनरली दे हैविंग द स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन. फॉर एग्जांपल अमोनिया. अमोनिया कौन है? एसिड या बेस? उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. अमोनिया कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन. एंड नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ AlCl3. AlCl3 के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी. मतलब इट एक्ट एज एसिड. सो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन कैन इजीली ट्रांसफर टू द एल्यूमिनियम एंड दे रिजल्ट इन अ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड. अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसने दिया? नाइट्रोजन ने. हेंस हम डायरेक्शन ऐसे लिखेंगे. एंड सच कंपाउंड आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड. क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कंपाउंड. एंड दिस बॉन्ड जो इन दोनों के बीच में हो रहा है, किसके बीच में? लेविस एसिड एंड लेविस बेस में कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या कहते हैं? व्हाट इज meant by coordinate bond? The bond which are formed by the sharing of इलेक्ट्रॉन बाय ओनली वन एटम. जैसे कोवैलेंट बॉन्ड में इक्वल शेयरिंग होता है, दोनों एटम इक्वल शेयरिंग करता है. अरे यस और नो? मिथेन. मिथेन में क्या है? एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है. तो 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के है और 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के. यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन किसने दिया है? सिर्फ नाइट्रोजन ने. एल्यूमिनियम का कोई रोल है क्या? दैट्स व्हाई ऐसे बॉन्ड जिसमें सिर्फ एक ही एटम, एक ही कंपाउंड या एक ही मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा सिर्फ पार्ट ले रहा है बॉन्डिंग में, ऐसे बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड. और कंपाउंड को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड. क्लियर एवरीवन? सो राइट डाउन. हेडिंग डाल दिया आपने. Here this theory was given by G.N. Lewis in 1923. According to Lewis theory, according to क्या हुआ? हाँ बस. According to Lewis theory, acid is a substance. According to Lewis theory, acid is a substance which accept electron pair. According to Lewis theory, acid is a substance which accept electron pair. क्या है acid? Acid is a substance which accept electron pair. According to Lewis, acid is a substance that accept electron pair. Okay? Example. Write down the example given on the board. Yes, Ag+, AlCl3, FeCl3, BCl3. मतलब जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, डिफिशिएंट मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, वही इलेक्ट्रॉन एक्सेस करेंगे. जिनके पास है वो देंगे क्या? याद रखना, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए और देने के लिए, दोनों के लिए क्या लगता है? एनर्जी. इसीलिए ये प्रोसेस इतनी इजी नहीं है जितना आप लोग पेन शेयर करते हो इधर से उधर. ओके, लिख रहे एग्जांपल. नेक्स्ट इज अ लेविस बेस.
Lewis base. According to Lewis concept, base is a substance. According to Lewis concept, base is a substance that donate electron pair. Base is a substance that donate electron pair. Acid कौन है? Acid is a substance that accept electron pair, and base is a substance that donate electron pair. Example are given on the board. OH minus, Cl minus, Cl minus, NH3. मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिच है, जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, या ऐसे सब्सटेंस जिनके ऑक्टेट कंप्लीट होने के बावजूद उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं. ओके, सो राइट डाउन द नेक्स्ट the reaction between Lewis base and Lewis acid. So Lewis base and Lewis acid result to form coordinate compound या coordination compound. और उनमें कौन सा बॉन्ड होता है? coordinate bond या coordination bond. Okay, so लिखो. So एक लाइन लिखो यहाँ पे. The reaction between Lewis acid and Lewis base. The reaction between Lewis acid and Lewis base. The reaction between Lewis acid and Lewis base give rise to a formation of. The reaction between Lewis acid and Lewis base give rise to a formation of a bond called as coordination bond या coordinate. Give rise to a formation of coordinate bond. क्या कहते हैं उसको? Coordinate bond. And the compound is called as coordinate compound. Coordination compound या coordinate compound. Got it everybody? So example लिख लो. Reaction between ammonia and AlCl3. जिसमें ammonia कौन है? Lewis base. और AlCl3 कौन है? Sorry, ammonia कौन है? Lewis base. और AlCl3 कौन है? Lewis acid. तो Lewis base का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना. और Lewis acid का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना. और दोनों के बीच में क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. याद रखना, एरो इज ऑलवेज टुवर्ड्स द डोनर एटम या एक्सेप्टर? डोनर. जिसने डोनेट किया है उसकी तरफ एरो होना चाहिए. किसने डोनेट किया है? नाइट्रोजन ने. बराबर है क्या? अरे पहले ही बराबर था. जिसने डोनेट किया है उससे शुरू होके जिसने एक्सेप्ट किया उसकी तरफ. बराबर है. अगर एरो ऐसा होता तो क्या होता कि नाइट्रोजन ने डोनेट किया है. नाइट्रोजन ने किया है क्या? और नाइट्रोजन ने किया है ना, तो इसीलिए एरो ऐसा ही होना चाहिए. ओके, एनीबॉडी हैविंग एनी डिफिकल्टी? कल हम देखेंगे ब्रॉन्स्टेड लाउरी कंसेप्ट, नॉट लाउडी. ओके, ब्रॉन्स्टेड लाउरी, LOWRY. ओके, ब्रॉन्स्टेड लाउरी. लाउडी बोलना नहीं, लाउरी. ओके, कंसेप्ट. ओके, सो सी यू टुमारो.